ہم جلدی سے خدا کے کلام کی طرف بڑھیں گے اور آج جو ہم سیکھنے والے ہیں ہمارا مضمون ہوگا کلیسیا۔ کیا مضمون ہوگا؟ کلیسیا۔ آپ سب نے اس نام کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر ہم نے سیکھنا ہے کہ کلیسیا ہے کیا۔ آمین۔ ہم سب نے آج سیکھنا ہے کہ کلیسیا بیسیکلی ہے کیا۔ سب سے پہلے ہم حوالہ پڑھیں گے، میرے ساتھ نکالیے خدا کے کلام میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ میں بھی تجھ سے کہتا ہوں، 13ویں آیت سے لے کر متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے لے کر۔ جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقہ میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون سے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم اربا کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ آمین۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اس کے جانے کے وسیلہ سے خدا ان کی برکت ہے۔ آمین آمین۔ آمین۔ ہاللویا ہاللویا ہاللویا۔ ہاللویا۔ سو جب یہاں پر پرستش ہو رہی تھی تو بڑا اچھا لگ رہا تھا اور بیٹیوں نے جو ہے وہ ساز بڑے اچھے بجائے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس کلیسیا کا رہنما جو ہے، جس کلیسیا کا چرواہا جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے اور وہ کلیسیا بھی بیدار ہوتی ہے۔ آمین۔ سو اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ آج سیکھیں گے کہ کلیسیا کیا ہے، تو اگر میں آپ سے یہ بات کروں کہ اگر ہم کلیسیا کو دیکھیں تو کلیسیا کے لفظی معنی کیا ہے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے کلیسیا کے لفظی معنی کیا ہے؟ چنے ہوں کی جماعت، چنے ہوں کی جماعت۔ جی، اور کوئی؟ باہر بلائے، باہر بلائے ہوئے، علیحدہ کیے ہوئے، باہر بلائے ہوئے، چنے ہوئے لوگ، الگ کیے ہوئے لوگ۔ آمین۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بولی گئی ہیں جو کہ کلیسیا کے اندر شامل ہیں، اور کلیسیا جو ہے وہ چرچ ہے، اور چرچ جو ہے وہ چنے ہوئے کی جماعت ہے جس کو خداوند نے علیحدہ کر لیا۔ اب یہاں پر خدا کے کلام میں سے جو ہم نے پڑھا کہ جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقہ میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ اب خدا یسوع مسیح اس شہر کے اندر ہے جو کیسریا فلپی کا علاقہ ہے، اور اس علاقے کے اندر ایسا ماحول تھا، اس کا انوائرمنٹ ایسا تھا کہ وہاں پر ایک بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ، وہ شہنشاہ کون تھا؟ کیسر جو ہے وہ شہنشاہ تھا وہاں پر۔ کیسر جو وہاں پر شہنشاہ تھا اور وہاں پر اس کی حکومت تھی، اور وہ لوگوں سے زبردستی جو ہے وہ اپنی ورشپ کرواتا تھا۔ کیسر اس وقت کا وہ بادشاہ حاکم تھا، اور وہ لوگوں سے زبردستی کہتا تھا کہ مجھے اپنا خدا مانو اور میری ورشپ کرو، میری عبادت کرو۔ تو اس ماحول کو دیکھتے ہوئے جب خدا یسوع مسیح وہاں پر گئے اس علاقہ کے اندر، تو خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو یہ کہتے ہیں کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ اب سنیے،
शागिर्दों के जवाब क्या है? शागिर्द जो खुदा यीशु मसीह के साथ 24 आवर रहते थे, खुदा यीशु मसीह से तालीम पाते थे, खुदा यीशु मसीह के जो दिल की बातें हैं खुदावंद उनको बताते थे, तो शागिर्दों ने क्या जवाब दिया? शागिर्दों में से बास ने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। अब बात यहां है कि खुदावंद ने कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो उन्होंने लोगों की ही बात खुदा यीशु मसीह को बताई। क्या कहा कि कुछ लोग तो कहते हैं कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, और फिर कुछ कहते हैं कि ये एलिया भी लगता है, ये एलिया भी है, और फिर उसके बाद बात जो है वो इसको यिर्मयाह भी कहते हैं। शागिर्द जो उसके साथ थे तब तक शागिर्द जो है वो खुदा यीशु मसीह को पूरे तौर पर नहीं जान सके जब तक खुदा यीशु मसीह ने उनको रूह को दसना दिया हो। वो उसकी अलूहियत को, वो उसके पूरे कद को उस वक्त तक ना जान सके जब तक खुदावन ने उनके ज़हन को ना खोला, उनको रूह को दसना मिला। तो उन्होंने लोगों की कॉपी जो है वो की, और लोगों की बातें सुनकर उनको कॉपी पेस्ट कर दिया कि लोग खुदा यीशु मसीह को कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई एलिया, कोई यिर्मयाह कहता है। और यिर्मयाह लोग क्यों कहते थे? क्योंकि यिर्मयाह ने भी जो है उस वक्त एक पेशन कोई की थी। यिर्मयाह भी कहता था कि तुम लोग सजा पाओगे, तुम पर सजा का हुक्म हो चुका है, तुम लोग जो है वो बर्बाद हो जाओगे। तो खुदा यीशु मसीह जब तालीम देते थे तो खुदा यीशु मसीह भी उनको यही कहते थे कि तुम ठीक हो जाओ, वरना वहां पर डाल दिए जाओगे जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। अब इसके बाद आगे लिखा है कि उसने कहा कि ठीक है, लोग मेरे बारे में जो कहते हैं वो लोगों की सोच है, लोगों को कहने दो, लेकिन तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? क्योंकि तुम मेरे साथ रहते हो, तुम मेरा कलाम सुनते हो, तुम मुझे मौजज़े करते देखते हो, तुम मुझे क्या कहते हो? तो वहां पर पतरस रसूल जो बड़ा चेला पतरस है, शागिर्द है, और वो क्या कहता है? कहता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तू कौन है? जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया। तो आगे सुनिए, आगे लिखा है कि यीशु ने जवाब में उससे कहा, यीशु को जब ये बात कही गई, जब यीशु ने शागिर्दों को कहा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या बातें हैं, तो पतरस रसूल ने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, तू मुबारक है, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर क्या की है? जाहिर की है। ये तेरी सोच नहीं है, ये तूने लोगों की कॉपी पेस्ट नहीं की, ये तूने तरह तरह की आज भी अगर देखें हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी बिदती तालीमें जो है वो जन्म ले रही है, बिदती तालीमें जन्म ले रही हैं, और बहुत सारे लोग उसमें जो है वो फंसते चले जा रहे हैं। क्यों फंसते चले जा रहे हैं? क्योंकि शायद हमारे ईमान के लिए हमारे पास उस तरह से तालीम नहीं है, हम अपने ईमान को शायद प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो कोई भी ऐसी जमात, ऐसी बिदती तालीम हमें कुछ कहानियां, हमें कुछ ऐसी हिस्ट्री की बातें बताते हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं, ये इसके पास कुछ नया है। लेकिन जो खुदा यीशु मसीह ने कहा, अब सुनिए बेस कैसे कलीसिया की बनी, अब कलीसिया का वजूद में आना कैसे हुआ। खुदावन ने कहा कि ये बात मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तू पतरस है और मैं इस पर यानी पतरस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और ये पहली बार खुदावन ने कलीसिया का
अल्फाज अपने मुबारक मुंह से निकाला, हालेलुया, कि एक कलीसिया बनेगी और वो बनेगी पतरस के ऊपर। अब अगर कोई बताए कि पतरस के ऊपर कैसे कलीसिया बनेगी, पतरस एक शागिर्द है, वो एक इंसान है, तो उसके ऊपर कलीसिया का बनना कैसे है, कैसे बनेगी कलीसिया उसके ऊपर? जब पतरस ने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, ये हमारी बेस है, ये हमारे ईमान की बेस है। हम ईमान लाते हैं कि खुदावन ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा, ये हमारे ईमान की बेस है। और इसी बेस को लेकर, इस ईमान को लेकर खुदावन ने कहा कि जो ईमान की बातें तेरे अंदर से निकली हैं, जो तूने मुझसे कहा है, ये तेरी अपनी मर्जी नहीं, ये तेरी अपनी सोच नहीं, ये लोगों की सोच नहीं, बल्कि मेरे आसमानी बाप ने तेरे अंदर ये बातें डाली और तूने बोल दिया, और इसी ईमान पर मैं एक कलीसिया बनाऊंगा, इसी ईमान पर। और आगे लिखा है, और आलमेरवा के दरवाजे इस पर गालिब नहीं आएंगे। जो कलीसिया है, जो चुने हुए लोग हैं, जो अलहदा किए हुए लोग हैं, जिनको दूसरों से बाहर निकाल लिया गया, अलहदा कर लिया गया, लिखा है कि उस कलीसिया के ऊपर आलमेरवा के दरवाजे जो है वो गालिब नहीं आएंगे, ना उनको सता सकेंगे। कलीसिया के ऊपर मुसीबतें, परेशानियां जो है वो ज्यादा देर नहीं रह सकती। मैं अक्सर एक बात करता हूं कि अगर कलीसिया पर, लोगों पर अगर प्रॉब्लम्स, परेशानियां, टेंशन्स, आजमाइशें अगर आती है तो उसमें मत घबराया करे। क्यों? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा अपने लोगों को किसी लंबी आजमाइश के अंदर नहीं रहने देता। आजमाइशें आना जो है ये जरूर है, क्योंकि जब तक हमारे ऊपर आजमाइश नहीं आएगी, हमें अपने ईमान का पता नहीं चल सकेगा। तो अगर कुछ लोग अगर ऐसा कहें कि हम तो खुदावन के बड़े नजदीक हैं, तो फिर भी हमारे ऊपर मुसीबतें क्यों आती हैं? मुसीबतें इसलिए आती हैं कि हमारा ईमान और ज्यादा मजबूत हो जाए, हम ईमान में और ज्यादा आगे चले जाएं। और फिर चर्च आगे लिखा हुआ है, जब खुदा यीशु मसीह ने कलीसिया के अल्फाज कहे कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और वो पत्थर कौन था? पतरस। आप मेरे साथ निकालिए जल्दी से की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 41वीं आयत से। जी। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब, 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। जी आगे। और ये रसूलों से तालीम पाने, और रफाकत रखने, और रोटी तोड़ने, और दुआ करने में मशगूल रहे। हालेलुया। अब ये कलीसिया की बेस है, बुनियाद है, ये कलीसिया की फाउंडेशन है। जब खुदा यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा, अमाल 2 बाब के अंदर जब रूह कुद्दस से भरा हुआ पतरस बाहर निकला, बालाखाने से बाहर आया, तो उसने जब वॉइस किया, जब उसने लोगों को बताया उनकी नाफरमानी, उनकी गलतियां, उनके सारे गुनाह उनको बताए, तो लिखा है कि उस वक्त 3000 लोग जो है वो बपतिस्मा ले लिया उन्होंने। ईद पेंतिकोस्त के दिन जब 120 की जमात पर रूह कुद्दस नाजिल हुआ, तो पतरस रूह कुद्दस से भरा हुआ बाहर निकला। और सुनिए,
लिखा है कि जब उसने वाइज किया तो उनके दिलों पर चोट लगी। हालेलुया, उनके दिलों पर चोट लगी। अब चोट कहां पर लगती है? जिसका दिल नरम होता है। खुदा कहते हैं कि मैं तुमको एक नया दिल बख्शूंगा। हालेलुया, खुदा कहते हैं कि मैं तुमको एक नया दिल बख्शूंगा। उस दिल के अंदर जो है वो खुदा की इबादत वर्शिप हुआ करेगी। खुदा कहता है कि नया दिल बख्शूंगा, उसके बाद मैं अपनी पैरवी तुम लोगों से करवाऊंगा, लेकिन नए दिल के साथ। पुराना दिल हमारे अंदर से निकाल दिया जाएगा, उसको चेंज कर दिया जाएगा। तो यहां पर लिखा है कि उनके दिलों पर चोट लगी, और जब चोट लगी तो लिखा है कि बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, सबसे पहले उन्होंने बपतिस्मा ले लिया। कलीसिया की बेस क्या है कि जब कोई ईमान लाता है तो उसका सबसे पहला काम क्या होता है? बपतिस्मा लेना। अब सुनिए, मैं आपको बताऊंगा कि जब कलीसिया बनती थी तो वो सबसे पहले कैसे काम करके जो है वो कलीसिया के अंदर शामिल होते थे। तो लिखा है कि उस वक्त लोग जो है 3000 आदमियों के करीब उस जमात के अंदर मिल गए। और वो जमात टोटल कितनी हो गई? 3120 लोगों की बुनियाद जो है वो बच गई, बन गई। आमीन। आपको समझ आ रही है ना? यस, हालेलुया। अब 3120 लोग जो है वो जमात का, कलीसिया का हिस्सा बन चुके हैं, जो खुदा यीशु मसीह ने पतरस से कहा था कि मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा। और पतरस के एक वॉइस पर जो है वो 3000 लोगों ने जो है वो इकरार कर लिया, ईमान ले आए, और फिर क्या किया? बपतिस्मा लिया। और फिर आगे जो कलीसिया का जो फर्ज है वो क्या है? पहली बात, तालीम पाना। वो तालीम पाते थे किन से? रसूलों से। हालेलुया। ये कलीसिया का ये पहला स्टेप है, पहला कदम है कि वो रसूलों से तालीम पाते थे। तो आज आप लोगों को कौन तालीम दे रहा है? हालेलुया। आपके खातम, आपका पास्टर आपको दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं। वो आपके लिए रातों को जाग जाग कर भी खुदा से आपके लिए कलाम मांगते हैं, आप लोगों के लिए दुआएं करते हैं। तो खुदा का कलाम कहता है कि ये कलीसिया के रूल्स हैं कि उस वो रसूलों से तालीम पाने। कौन लोग? जो लोग ईमान ला चुके थे वो रसूलों से तालीम पाते थे। अब अगर आपको लगता है कि हमें अतवार की इबादत करनी चाहिए, उसके बाद नहीं करनी चाहिए, तो फिर अगर आपके अंदर ये तालीम पाने वाली स्पिरिट नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि कलीसिया का पहला स्टेप, कलीसिया का एक पिलर आपके अंदर से गायब हो गया है। अगर आप अपने खादम से जो है वो तालीम नहीं पा रहे, अगर वो तालीम जो देता है, अगर आप उस पर यकीन नहीं कर रहे, आप उस पर यकीन करके अच्छे अमल नहीं कर रहे, उस पर अप्लाई नहीं कर रहे, तो सबसे पहले तालीम पाने की जरूरत है। दूसरी बात है कि वो और रफाकत रखने में, अब उस्तादों से, रसूलों से, हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो खादिम हैं, उनसे रफाकत भी रखनी पड़ेगी। और अक्सर क्या होता है, इतवार की इबादत है या एक और दिन, हफ्ते में 2 दफा इबादत करते हैं, लोग आते हैं, उसके बाद खादम का नहीं पता होता कि खादम कहां पर है। उसके बाद लोग फिर से जब दोबारा दूसरे हफ्ते के अंदर चर्च का टाइम होगा तो फिर लोग आ जाएंगे। तो क्या ये रफाकत थी? ये रफाकत होगी? नो, बल्कि लिखा है कि वो रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने और उसके बाद रोटी तोड़ने में। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जो तुम घरों के अंदर रोटी तोड़ते या खाना खाते हो, उसको तुम इशारबानी में शरीक नहीं कर सकते। वो आपकी रफाकत का नतीजा है। अगर आप रफाकत रखते हैं, मैं अक्सर एक बात, ये मेरी गवाही है,
पीएफ के अंदर जब हम रहते थे तो वहां पर जब हम ड्यूटी से वापस आते तो हर रोज ऐसा होता था कि कलीसिया के जो घर होते थे वो कोई ना कोई घर कहता, बिशप अमानत साहब वहां पर उस वक्त पास्टर थे, तो उनको कहते कि पास्टर साहब आज अपनी टीम को लेकर हमारे घर में आए, हमने चाय का बंदोबस्त किया है, साथ हमारे घर में प्रेयर मीटिंग करें, दुआ करें और फिर हम मिलकर रफाकती खाना भी खाया करेंगे। ये रफाकत रखने का जो है वो वसीला एक बनता है और ये कलीसिया के अंदर होना चाहिए और ये इब्तदाई कलीसिया का असूल था। चौथी बात है, और फिर दुआ करने में मशगूल रहते थे। दुआ करने में क्या रहते थे? मशगूल रहते थे। वो हमेशा लगे रहते थे, वो दुआ करते थे, वो रोटी तोड़ते थे, वो तालीम पाते थे, वो रफाकत रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि उनके अंदर खुदा का कलाम आ चुका था, वो अपने खुदावन को कबूल कर चुके थे, वो कलीसिया के अंदर शामिल हो चुके थे, इसलिए उन पर ये लागू होता था कि वो रसूलों से तालीम भी पाए, रफाकत भी रखें, रोटी भी तोड़े और फिर दुआ भी उनके साथ मिलकर करें। हालेलुया, हालेलुया। तो ये किन का फर्ज था? कलीसिया का। मैंने अभी आपको कहा कि अपने ज़हन को एक्टिव रखने के आज हम कलीसिया के बारे में सीख रहे हैं कि कलीसिया कैसी होती है। वो रसूलों के साथ मिलकर दुआ भी करते थे। और आखिरी चंद बातें हैं, इसके बाद हम क्लोज करेंगे। 46वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे। कौन लोग? कलीसिया। जो कलीसिया के रुकन बन चुके हैं वो लोग क्या करते थे? और हर रोज हैकल में जमा हुआ करते थे। हफ्ते में कितने दिन? हर रोज। जो कलीसिया है वो हर रोज हैकल में जमा हुआ करती थी। और फिर आगे लिखा है, और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे। मैं बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाऊंगा अपने टॉपिक से, या बहुत ज्यादा लोगों के लिए बातें नहीं करूंगा, लेकिन हमारे चर्चेस का रूल्स क्या है कि अगर हमारा एक इंसान के साथ जो तल्लक है वो बिगड़ चुका है, अगर वो चर्च में आता है तो दूसरा बंदा चर्च नहीं आएगा। तो या क्या ये कलीसिया का रूल्स हो सकता है? मैं आपको ही अगर कहूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं नहीं कहूंगा कि आप हैं, अगर आप में से भाइयों में से अगर किसी एक भाई की आपस में ना बनती हो, बाहर कहीं जो है उसके साथ ऊंच नीच हो गई हो या कोई ऐसी बातें हो गई हो, लेकिन वो एक ही चर्च के मेंबर हैं, तो वो क्या करेंगे? यार अगर उन्हें जाना तो मैं चर्च नहीं जाना। तो क्या ये कलीसिया का असूल हो सकता है ऐसा? क्या खुदावन ने ऐसी कलीसिया बनाई? बल्कि लिखा है कि वो हर रोज खुशी किया करते थे। सादा दिली से, चलाकियों से नहीं, सादा दिल, नरम दिल जो खुदा हमें देता है। लिखा है कि वो सादा दिली से खाना खाया करते थे और खुशी मनाया करते थे। आखिरी आयत 47वीं, और खुदा की हमद करते और सब लोगों को अजीज थे, एक दूसरे को प्यार करते थे, एक दूसरे की इज्जत करते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। और ये रूल्स कलीसिया के अंदर शामिल है। अगर आप कलीसिया हैं तो ये रूल्स आपको अपनाने पड़ेंगे। अगर आप कलीसिया में आकर भी ये रूल्स नहीं अपनाते तो फिर आपकी कलीसिया के अंदर ये 4 पिलर जो हमने देखे उनमें से कोई ना कोई गायब जो है होता रहेगा। और अगर आप कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, 4 पिलर उसके हो चारों कोनों पर, अगर एक को निकाल दिया जाए तो बिल्डिंग खड़ी रहेगी? गिर जाएगी, वो गिर जाएगी, वो कमजोर हो जाएगी। और लिखा है कि और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था। किन लोगों को? जो निजात पाते थे, जो ईमान लाते थे, जो रसूलों से रफाकत रखते थे, उनके
के साथ मिलकर दुआ करते थे, जो उनसे तालीम पाते थे, जो लोग ईमान लाते थे, खुदा हर रोज उस कलीसिया के अंदर क्या करता था? उनको मिला देता था। हालेलुया। और इसी तरह कलीसिया की बुनियाद जो है वो फटती और फटती गई। आज पूरी दुनिया के अंदर जब हम रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि मैं ईमान रखता हूं आलमगीर कलीसिया, पूरी दुनिया के ईमानदार लोग। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आखिरी बात है, कलीसिया अलहदा की हुई जमात है। बनी इसराइल को जब खुदावंद ने फराउन की कैद से निकाला, तो जब खुदा ने मूसा को भेजा तो मूसा को एक बात कही थी कि मूसा जाकर क्या कर, क्या फराउन को कह कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें। मेरी क्या करे? इबादत करें। खुदा ने मूसा से कहा कि मूसा जा फराउन से कह कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि ये मेरी जाकर इबादत करें। फिर खुदा ने मूसा को कहा, मूसा जा मेरे लोगों को उससे छुड़ा और फराउन से कह जाकर मेरे लोगों को जाने दे ताकि ये बियाबान में जाकर क्या करे? मेरी इबादत करे। कलीसिया से खुदा एक डिमांड करता है और वो इबादत की डिमांड है कि मेरे लोग, वो कलीसिया, वो दुआ करें, वो वर्शिप करें, वो इबादत करें, क्योंकि खुदा ने बनी इसराइल को भी वहां से इसीलिए निकाला था कि वो खुदा की इबादत करें। हालेलुया। तो इसी तरह जब बनी इसराइल वहां पर कैद थी तो वहां पर अपने खुदा की इबादत उस तरह से नहीं करने देते थे, तो खुदा ने उनको वहां से आजाद किया। तो नए अहदनामा के अंदर भी जब खुदावंद कलीसिया बनाते हैं तो खुदावंद उनको भी अलहदा करता है। खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और मैं तुमको भेजता हूं कि जाकर फल लाओ, तो और तुम्हारा फल क्या हो? कायम रहे। तुम्हारा फल जो है वो कायम रहे। और ये कलीसिया का रूल्स है मेरी बहनों, मेरे भाइयों। अब अगर आप कलीसिया के मेंबर हैं तो अपने दिल को जो है वो ऐसा नरम करें कि जब खुदा का कलाम आपके लिए सुनाया जाए तो जिस तरह उस वक्त लोगों के दिलों पर चोट लगी, आज अगर हमारे दिलों पर भी खुदा के कलाम की चोट लगेगी तो यकीनन हम जरूर जो है वो अपने आप को चेंज करेंगे। हालेलुया। तो वो 4 पिलर क्या है? ये 4 काम कलीसिया की जिम्मेदारी है। अगर ये कलीसिया काम करेगी तो कलीसिया कभी भी जो है वो ना कमजोर हो सकती है, ना वो कम हो सकती है, बल्कि वो हमेशा बढ़ते ही चले जाएंगे। आमीन। हालेलुया। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन।